contact force nature, what is the nature is most important na. So I can say that it is a opposing kind. You are saying that it is a opposing kind. Now see, when I am saying that when it is an opposing kind means someone is increasing some force and the reaction will be decreasing kind, right? This only you mean. So I can say that friction is the opposing force, that is since it is contact, so the contact kind of opposing force, right? Someone is moving forward, so friction will be like this way. This is the friction direction. Okay, so anybody can slips, anybody can rolls, okay, or anybody is walking simply, everything is just can be feel the opposition frictional force. Okay, now see, if I am saying something static word, okay, means if any force is there is a small body and it is lied horizontally, okay, on the surface, and it is not moving, means it is in rest. Suppose I am kept a plank and this is a horizontal surface and this is at rest, this is at rest, this box is rest, then this is the surface. Okay, now see, sim it तो is, इसमें स्टैटिक फोर्स लगेगा तो जितना फ्रिक्शन होगा उतना ही वो होगा। हाँ, ये रेस्ट पर है, हाँ, दैट मीन्स रेस्ट पर है, दैट मीन्स कि ये आगे मूव ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो अपोजिंग फोर्स है, वो डायरेक्टली इन दोनों के इक्वल है, राइट? दिस फोर्स एंड दिस मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज बोथ इक्वल. Okay, so since they are equal but opposite in sign, that why it is called static friction. Is it okay? यस मैम। Now if it is something is moving, something is sliding, and okay, means that much force we are applied and that much the opposing one is little bit not totally equal, so something is slight. So something when anything is moving, that is a kinetic kind of work is going on, right? There is a motion, so kinetic something is going on. So when the opposing and they are sliding, so that type of friction is called kinetic friction, or you can say sliding, anything like that. Okay, is this okay? See, static friction is well explained by this your diagram. Okay. Now यस there are मैम। some of the points that in static friction the two bodies should be in contact. It is necessary because surface is having two surfaces and they have to be contact for static friction. Next is that the two bodies in contact and the friction, if they are saying that it is on rest, so I will say that both of them are applied and they are just cancelling each other. So these are the some of the examples of the static friction. Now how can I say that it is a static friction? How can I say that? See, this will be more appropriate for you that this one. I am trying to say you कि friction, which kind of friction? I am just first I talk you with the static friction. Static friction. So जब हम static friction की बात कर रहे हैं तो ये दो बॉडी के कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता. कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता, उससे तो वो इंडिपेंडेंट है. हम इस पर डिपेंड करवाते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन कितना दे रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कितना दे रहा है बॉडी पर. क्लियर है? इसका मतलब क्या कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू है जिसे हम मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं, और ये प्रोपोर्शनल है आर के. आर यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाना पड़ता है, तो यहाँ पे हम म्यू एस लाते हैं. तो म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. कोफिशिएंट, तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है छोटे मोटे, इस कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी. क्लियर? तो अगर हम ओवरऑल कहें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, या हम ये कहें कि एक्चुअल में फ्रिक्शन क्या है, तो हम ये कहेंगे भैया ये रेजिस्टेंस फोर्स है. कुल मिला के ये तो एक रेजिस्टेंस फोर्स है ना. तो क्या सिर्फ सॉलिड बॉडी में ही फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है? नहीं, लिक्विड्स में भी करता है. लिक्विड में जो विस्कोसिटी है, ठीक है, यानी कि आप ग्लीसरीन देखोगे, ग्लीसरीन कितना धीरे 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 लेयर्स के फॉर्म में बहता है, राइट? अगर आप पानी देखोगे तो पानी आपको उतना समझ में नहीं आता, लेकिन ग्लिसरीन आपको इजीली समझ में आ जाए. या जो कार बार में मोबिल यूज़ होता है ना, कितना थिक होता है, बट वो जब फ्लो करता है कितना धीरे धीरे फ्लो करता है, तो वो भी एक तरह का रेजिस्टेंस है फ्लो में. ठीक है, सो ऑल दीज आर व्हाट? फ्रिक्शन. दीज ऑल आर व्हाट? फ्रिक्शन. नाउ सी आई विल से यू, इसका मतलब जो अभी हम लोगों ने लिमिटिंग पढ़ा उसमें क्या है कि ये कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है स्टैटिक फ्रिक्शन का दो बॉडी के बीच में, वो एक लिमिटिंग वैल्यू से होल्ड किए हुए हैं. ठीक है, इसका मतलब है कि बॉडी अगर एक बॉडी के ऊपर स्लिप करने जा रही है, एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी जिसके साथ वो कांटेक्ट में है उसके ऊपर स्लिप करने जा रही है, स्लिप. ठीक है, क्या कर रही है? स्लिप. और इसे हम लोग वर्ज टू स्लिप कहते हैं बेटा, वर्ज टू स्लिप. क्लियर है? तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वो एफ, ये जो हम मैक्सिमम एफ एस जो कर रहे थे अभी, एफ एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे थे वही होगा. ठीक है, जो कि बॉडी के कोफिशिएंट और उसके नॉर्मल के बराबर होगा. एन बोलो या आर बोलो, जो भी बोलो, कुछ भी बोल दो चलेगा. क्लियर है ना?
हम्म। यस मैम। हाँ। अब दूसरा क्या है कि अगर ये काइनेटिक फोर्स होता, ठीक है, अगर ये काइनेटिक होता तो काइनेटिक के लिए भी प्रॉब्लम है, क्या है वो भी किसी न किसी चीज़ से आपका डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, यानी कि उसमें भी एक आपका कोफिशिएंट मिलेगा, राइट। सो देखो यहाँ पर भी एक आपका काइनेटिक का ये कोफिशिएंट है। क्लियर, क्लियर है, ओके। अब देखो एक चीज़ और है, ये म्यू के म्यू एस ये सारे के सारे क्या हैं, कोफिशिएंट है। बट ये एक मैं चीज़ और बताना चाहूँगी, ये जो है म्यू एस या आप बोल दो म्यू के, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड किस पर करते हैं, नेचर ऑफ द सरफेस पर करते हैं, ठीक है। यानी कि आप जो स्लिपिंग वाला कार्यक्रम करवा रहे हो उसके नेचर पर डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। और जनरली ये देखा गया है कि जो म्यूके की वैल्यू होती है वो लेस होती है, ओके। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भैया ये चारों जो ये स्टैटिक हुआ या फ्रिक्शन हुआ या काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ, ये सब के सब क्या है, कॉन्टैक्ट वाले हैं। क्लियर। सो नाउ सी दिस एग्जाम्पल शोज यू कि कैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये वेज रखा गया है क्योंकि हमें फ्रिक्शनल एनालिसिस करनी है, इसलिए हमारा सरफेस भी रफ है। तो और ये जो ब्लॉक है इस वेज के ऊपर क्या कर रहा है, स्लिप करके रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में, ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा वेज है, तो वो एक एंगल से इंक्लाइंड है, ठीक है। अब ये बोला गया है कि जो इंक्लाइंड एंगल थीटा है इज इंक्रीज अंटिल द ब्लॉक स्टार्ट्स मूव, ये धीरे 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 बढ़ता रहेगा जब तक ना ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रिलेटेड टू द क्रिटिकल एंगल क्यू सी एट विच द ब्लॉक बिगिंस टू मूव, मतलब ऐसा एंगल बोलो क्रिटिकल एंगल जहाँ पे ये ब्लॉक स्टार्ट करे मूव करना, ठीक है। और उसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी निकालो। तो भैया यहाँ पर ये देखो, अब तुम बताओ ये ब्लॉक किसी पॉइंट पर है तो वो नीचे की तरफ क्या फील करेगा, नीचे की तरफ mg फील करेगा, mg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स फीलेगा। और जब ये नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स फील करेगा तो देखिए बेटा जी, ग्रेविटेशनल फोर्स तो एकदम परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ये तो है तुम्हारा वो क्या कहते हैं, ऐसे है टिल्टेड है, तो इसका तो अपना नॉर्मल होगा, होगा ना। लेकिन इसका नॉर्मल किसके बराबर है, ये जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन जब टूट रहा है तो कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर है, यानी कि इसका नॉर्मल जो है कॉस थीटा के साथ पेयर बना रहा है ना, यस मैम। ठीक है। अब देखो जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एफ लग रहा है, जो कि आपके इस वेज के मूव ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है। अब जब तक ना ये ब्लॉक मूव कर रहा है ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बैलेंस है और ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम में है, ठीक। अब एक्स एक्सिस और जो तुम्हारा एक्स एक्सिस है, अब देखो ये एक्स एक्सिस इंक्लाइनेशन के पैरेलल है कि नहीं, और आपका जो वाई एक्सिस है वो आपके इसके पैरेलल है। क्लियर है। तो आप इस पर क्या लगाओगे, न्यूटन्स का लॉ लगाओगे, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, सारे एक्स डायरेक्शन के सम लोगे तो साइन थीटा एक आएगा और एक क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, एक साइन थीटा आएगा एक स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो लिख लो एम जी साइन थीटा, और ये तो उसके ऑपोजिट लग रहा है तो माइनस स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, जीरो के बराबर। और एफ वाई डायरेक्शन में क्या आएगा, मैंने अभी बोला नॉर्मल उसके कॉस थीटा के बराबर होगा, तो आप लिखो भाई कि नॉर्मल जो ऊपर की तरफ जा रहा है माइनस एम जी कॉस थीटा, जो कि जीरो के बराबर होगा। तो ये दोनों से दोनों हम लोग एफ एस और एन नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं एफ एस और एन, ठीक है। तो एफ एस और एन निकालने के बाद हम ये कहेंगे कि क्रिटिकल एंगल पर ब्लॉक जो है वर्ज करना चाहेगी स्लिप करने के लिए, ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी ना, बताओ। देखिए मैं क्या कह रही हूँ कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल होगा, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होगा जहाँ पर ब्लॉक वर्ज कर रही है मूवमेंट के लिए, वर्ज टू मूव, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने वो लिमिटिंग वाला पढ़ा था ना, लिमिटिंग वाला पढ़ा था, एफ एस इजिकल टू व्हाट, म्यू एस नॉर्मल का रिएक्शन, यही तो पढ़ा था। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो पार्ट है आपका एफ एस इजिकल टू एम जी साइन थीटा, यही हो जाएगा। लेकिन साइन थीटा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल ले रहे हैं तो ये सी हो जाएगा, लेकिन ये होगा किसके बराबर, ये होगा आपके म्यू एस एन के बराबर, म्यू एस एन के बराबर, ठीक है, एक पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आप बोलो ये कॉस थीटा वाला एम जी कॉस थीटा सी जो कि एन के बराबर है। क्लियर है, ये दोनों इक्वेशन आपको समझ में आ गए बेटा। अब साइन थीटा अपन कॉस थीटा करो तो टैन थीटा निकलेगा, और टैन थीटा आपका क्या निकल जाएगा, म्यू एस निकल जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट क्या है, इस वेज के टैन थीटा के एंगल के बराबर। क्लियर है ना। यस मैम। अब हमारा जो ब्लॉक है वो मूव कर रहा है, यानी कि हम लोग अब क्या निकालेंगे, काइनेटिक।
काइनेटिक निकालेंगे, तो काइनेटिक निकालने के लिए हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो किसके बराबर था, वो आपके म्यू के था, म्यू के था। Yes. हाँ, Okay. तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स देखेंगे और वो म्यू के बराबर रखेंगे, ठीक है। और फिर ये ऊपर से नीचे तक फ्लो कर रहा है। अब देखो, तो जब वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है बेटा, तो देखो इसमें एंगल्स बनाए गए हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे होगा, कि ये वाला फोर्स है आगे की तरफ, एक है आपका पीछे की तरफ, और ये मान लो कि tan फाई है, ठीक है, जिसमें इम्पेंडिंग मोशन कर रहा है। सो आई कैन से दैट कि ये जो ब्लॉक की स्टेट होगी वो म्यू एस एन बाई एन होगी, और ये डायरेक्टली आप बोल सकते हो म्यू एस, जबकि tan के जो होगा म्यू के एन बाई एन होगा। और मैंने अभी बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है नॉर्मली ज़्यादा होता है किसके, काइनेटिक फ्रिक्शन के। स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है किसके, काइनेटिक फ्रिक्शन के, होता है ना। देखो यही वाला फॉर्मूला अभी हम लोगों ने निकाला था ना कि दोबारा बता दो मैम, हाँ, दोबारा बता दो। ये वाला एंगल वाला। यस मैम। ओके, देखिए मैंने बोला ये आपका डायग्राम है, किसका डायग्राम है, ब्लॉक का डायग्राम है, जो यहाँ पे ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक का, क्योंकि ये डायग्राम तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा ही है, ये वाला डायग्राम देखा है ना। तो ये वाले डायग्राम से तो ये आपके इक्वेशंस कैसे निकले ये भी हम लोग को क्लियर है, ठीक है। लेकिन ये वाला क्लियर करो, नॉर्मल रिएक्शन एन और फ्रिक्शनल फोर्स एफ, ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं आपके टोटल रिएक्शन फोर्स ऑफ द सरफेस ऑन द ब्लॉक बना रहे हैं, यही दोनों बना रहे हैं ना। ये देखिए, ये जो सरफेस है, सरफेस का ब्लॉक के ऊपर, ये जो आपका सरफेस है वेज का, ये ब्लॉक के ऊपर फोर्स बना रहे हैं, ब्लॉक के ऊपर फोर्स बना रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जो नॉर्मल रिएक्शन है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दो कंपोनेंट मिला के टोटल रिएक्शन फोर्स बना रहे हैं सरफेस का ब्लॉक के ऊपर। तो एंगल बिटवीन रिएक्शन एंड द नॉर्मल विल बी कॉल्ड व्हाट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, ये जो आपका लाइन दिया हुआ है ना, एंगल बिटवीन टोटल रिएक्शन आर एंड द नॉर्मल रिएक्शन एन इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है, ये लाइन क्लियर है। अब देखो नॉर्मल ये है और रिएक्शन ये है, तो ये दोनों का ही क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल फ्रिक्शनल एंगल होगा। अब हमें निकालना एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। अब बॉडी इधर मूव करना चाह रही है, ठीक है, और फ्रिक्शन उसको इधर मूव करवा रहा है। तो जब व्हेन द ब्लॉक इज इन इम्पेंडिंग स्टेट, tan फाई एस, ये वाला तो अभी रिएक्शन निकाले, ये वाला फॉर्मूला अभी निकाले, इसका मतलब ये सारी चीज़ें इज इक्वल टू आपके किसके बराबर होगी, मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि फाई जो है लेस देन इक्वल टू जो होगा वो फाई एस के होगा। और जब ब्लॉक स्लाइड करेगी, यानी कि देखो जब ब्लॉक इम्पेंडिंग मोशन करती है ना बेटा, जब बॉडी इम्पेंडिंग मोशन करती है तब हम स्टैटिक करवाते हैं, और जब बॉडी स्लाइड के मोशन पे जाती है, स्लाइडिंग के मोशन पर जाती है, तब हम काइनेटिक करवाते हैं, ठीक है। तब हम क्या करवाते हैं, काइनेटिक। इसलिए बेटा यहाँ पर जो होगा वो आपका काइनेटिक वाला पार्ट होगा और ये म्यू के बराबर होगा। क्लियर, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर तो ये सारे वैल्यूज हम लोगों ने निकाले ही हैं अभी पीछे, ठीक है। tan थीटा मैक्स और tan थीटा मैक्स ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स म्यू के। क्लियर, और दो तीन क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। हियर व्हाट आई हैव शोन कि एक बॉक्स अगर खींच रहा है पुली इधर की तरफ फोर्स के साथ पी से, तो दूसरा वाला क्या करेगा, खिसक के ऊपर की तरफ जाएगा। मैम। और जब खिसक के जाएगा तो आपस में इन दोनों के क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स काम करेंगे कि नहीं, यस मैम। ठीक है। अब देखो पहली चीज़, अगर मैंने आपको बोला है कि जो फोर्स पी से इसको खींच रहा है, तो एक ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, एक ब्लॉक नीचे की, मतलब ए वाली ब्लॉक क्या हो जाएगी, बी ब्लॉक क्या हो जाएगी, जब वो नीचे की तरफ लेफ्ट साइड जा रही है यानी कि वो LHS डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अगर ये ए ब्लॉक है और ये इधर की तरफ जा रही है यानी कि ये RHS डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं। यस मैम। अब जब ये पॉइंट आ गया तो मुझे ये बताओ कि दोनों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, तभी तो वो खींच रही है। अब जब वो कांटेक्ट हो रहा है तो दोनों के बीच में फोर्सेस लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन का पेयर बन रहा है, पहली चीज़। अब इसका देखो डायग्राम में कैसे तोड़ा है उसने, तोड़ा कैसे है बेटा, अगर उसने ए को लिया है तो तुम बताओ ए जो लगेगा, एक तो ए का नीचे की तरफ लगेगा, ए जा एक तरफ रहा है, ऊपर ए के साथ टेंशन लग रहा है और नॉर्मल इस ए का लग रहा है। लेकिन अब बी के पास आओ, बी तो नीचे की तरफ बैठा है, बी नीचे की तरफ बैठा है, तो बी पर लगाया जा रहा है फोर्स पी, उसको इस तरफ लेफ्ट साइड खींचने के लिए। लेकिन आप एक बात बताओ, उसका लगेगा तो फ्रिक्शनल एफ बी, साथ में पुली का टेंशन, और साथ में ऊपर वाले का भी तो एफ ए लगेगा, क्योंकि ये बी जो है सरफेस के साथ है, तो इसके ऊपर तो ए के साथ भी फ्रिक्शन लगेगा, सरफेस के साथ भी फ्रिक्शन लगेगा। तो कुल मिला के इसके पास कितने हो गए, 3 हो गए। अच्छा, ये खुद का जमीन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा mg, लेकिन इसका देगा रिएक्शन क्या, nb, लेकिन इसका जो नॉर्मल होगा वो b के कारण नीचे ही तो लगेगा ना, b का जो लग रहा है वो b के कारण नीचे भी लग रहा है, समझ गए। सो इस बी का जो है कितने सारे फोर्स इस पर काम कर रहे हैं। तो हमें इस डायग्राम को तोड़ा है इन पार्ट में और इस पार्ट में, ये डायग्राम का तोड़ना दिमाग में जरूर रखना, ये आपको हेल्प करेगा बेटा
कि हमें प्लस माइनस साइन के हेल्प से कैसे कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर म्यू की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स जो लिमिटिंग करता है फ्रिक्शनल फोर्स को, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। अब सिमिलरली उसी को हम लोग एक और, जब मोशन की तरफ जाता है तो वो हो जाता है आपका क्या, काइनेटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन के, ठीक है, लेस देन इक्वल टू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन के। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है बॉडी पर, बॉडी को रेस्ट से लिमिट के तरफ ले जाती है। क्लियर? तो हमेशा कोशिश करना कि ऐसे ना लिख के हमेशा F इज लेस देन म्यू एस एन करना है, ठीक है, ओके। ये सारी चीज़ें कुछ नोटेशन है, ये आप और धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तब आपको और क्लियर होगा। जैसे देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बताया गया है इस क्वेश्चन में, एक बार पढ़िए इस क्वेश्चन को बेटा। यानी कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर एक ब्लॉक रखा गया है, ठीक है। ब्लॉक का खुद का वेट जो है 100 न्यूटन है। 100 न्यूटन जो बोला है उसका वेट बोला है, ब्लॉक का वेट, यानी कि ये mg बोल रहा है, mg बोल रहा है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जस्ट बिगिन्स टू मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 25 न्यूटन्स एक्ट ऑन इट। मतलब उसको जो मूव कराने का जो फोर्स है वो आपका क्या है, 25 न्यूटन का। डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब म्यू एस निकालना है। क्या निकालना है? म्यू एस निकालना है। अब आप बोलो ये जो फोर्स होगा 100 न्यूटन का, वो इक्वल टू क्या होगा, म्यू एस एन। म्यू एस एन अपॉन एन। हाँ, तो आप कैसे निकालोगे इसको? 25 अपॉन 100। 25 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकला, म्यू एस निकला, इक्वल टू 0.25। कोफिशिएंट है भाई, तो आपने को तो कोई वो लगेगा नहीं। ये क्या बता रहा है कि अ ब्लॉक लाइंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन हैज़ अ वेट ऑफ 50 न्यूटन, मतलब उस ब्लॉक का वेट 50 न्यूटन है। इफ़ इट जस्ट स्लाइड डाउन द इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑफ 30 डिग्री, म्यू एस निकालो। अब वो इंक्लाइनेशन पर है 30 डिग्री के। अब तुम बताओ, ये इसको तोड़ा है ना, ये इसको तोड़ा है, टूट के कैसे आया, देखिए। ये अगर ऐसे खींच, एक तो ये कौन सा है, इधर वाला कौन सा है, इधर वाला आपका फ्रिक्शन है, ठीक है। इधर वाला आपका नॉर्मल फोर्स से जो वो गिरने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब आप बोलो कि नीचे जो ये लगेगा, ये तो आपको डायरेक्टली mg लगेगा इस साइड में, लेकिन ये mg के कोफिशिएंट्स में टूटेगा, mg के कोफिशिएंट्स में टूटेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो है ये आपका एंगल के साथ है। तो आप बता सकते हो कि भाई जो नॉर्मल है वो आपका वेट कॉस 30 डिग्री के बराबर है कि नहीं, ये बता सकते हैं। अच्छा, और दूसरा वाला साइन का कोफिशिएंट क्या है, कि साइन का कोफिशिएंट जो है आपका, ये आपका फ्रिक्शनल के बराबर लग रहा है। क्लियर है? तो भैया अब इक्विलिब्रियम पर हम इन दोनों को इक्वल करके निकाल नहीं सकते हैं? कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला इट जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड, इट जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड, बिगिन्स टू स्लाइड। जब ये ऐसी सिचुएशन है तो दोनों को इक्वल कर दो, यानी कि म्यू एस डब्लू कॉस थीटा और 30 डिग्री डायरेक्ट पुट कर दो, इज इक्वल टू डब्लू साइन थीटा। तो ये म्यू एस जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/2 और रूट 3/2, यानी कि 1/√3। डब्लू डब्लू तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ना? यस मैम। हम एक मिनट रुकना, बोल रही हूँ मैं। हाँ सी, इस क्वेश्चन में क्या बोला कि अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल इज पुश्ड बाय द फोर्स एफ एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब जो फोर्स उस पर लगाया जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर बना के लगाया जा रहा है। क्लियर है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एफ विल द ब्लॉक बिगिन्स टू मूव इफ म्यू एस इज दिस, ठीक है। अब तुम देखो, ये अगर 30 डिग्री एंगल पर, एक ये है, ठीक है। अब इस पर, ये इस डायग्राम पर ही सारा क्वेश्चन लिख दिया गया है, अलग से दिया नहीं गया है। तो मुझे बताइए, ये इसका mg है, ठीक है, और उसी का रिएक्शन क्या दे रहा है आपके, नॉर्मल। दूसरा इसके ऊपर एक पड़ रहा है, ठीक है, जो दे रहा है, और ये उसका नॉर्मल है। क्लियर? अब इसको अगर धक्का दे के आप इधर 25 न्यूटन से धक्का दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है इसके अपने भागों में टूटेगा, और जब ये टूटेगा तो एक साइन थीटा कॉस थीटा देगा, ठीक है। एक का ये है, एक का ये है, तो यही वाली चीज़ तो हम लोग अभी पीछे में बैलेंस कर रहे थे। तो एक क्या जाएगा, नॉर्मल के बराबर साइन थीटा हो जाएगा, और एक फ्रिक्शनल के बराबर कॉस थीटा आ जाएगा, दोनों का इक्वल करेंगे तो ये आंसर निकल जाएगा। क्लियर है ना? समझ में तो आ रहा है ना ये क्वेश्चन, कि एक एंगल आपको बता दिया गया है 37 डिग्री का वेज है, ठीक है, उसके ऊपर दो मास रखे हैं m1 और m2, और m1 m2 को जोड़ा गया है एक रस्सी से, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इस वेज से ये नीचे की तरफ जो आ रही है वो a एक्सेलरेशन से आ रही है। तो बोला गया कि भैया मास m1 जो है वो आपकी 4 kg का है, और m2 जो है वो आपके 2 kg का है, ठीक है।
ओके। अब इन दोनों को कभी कभी किसी बुक में आपको रस्सी बोल देगा, किसी बुक में रॉड बोल देगा, ये आपके ऊपर है कि किसी पर भी बना, जो असाइनमेंट मिलता है उसके ऊपर, ठीक है। अब ये जो है वो क्या कर रही है, उस इंक्लाइनेशन जो आपकी 37 डिग्री है उससे वो नीचे की तरफ गिर रही है, क्लियर है। अब हम ये कहेंगे कि जो प्लेन पर वो चढ़ी है उसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन देख लो, म्यू के बोल दो, पता है किसी किसी बुक में आपको म्यू के बोला जाएगा, किसी किसी बुक में आपको म्यू डी बोला जाएगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। अरे डायनामिक का मतलब ही मोशन है, काइनेटिक ही हो गया ना, बात तो सेम ही है, अलग है कि सेम है। तो एक मास का जो म्यू 1 है वो आपको बोल दे रहा है कि 7.75, और म्यू 2 जो है वो बोल दे रहा है कि क्या आपका 0.25, लेकिन दोनों का जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो कॉमन एक्सेलरेशन है, कॉमन एक्सेलरेशन है। समझ में आ रहा है ये चीज़, कॉमन एक्सेलरेशन यानी कि ए ही है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो नीचे की तरफ गिर रहे हैं, क्लियर। तो आपको निकालना क्या है कि दोनों ब्लॉक के बीच से जो एक्सेलरेशन कॉमन सा है वो निकालो, और दोनों ब्लॉक के बीच में जो टेंशन है वो निकालो। दिया हुआ है कि गिवन है आपका साइन 37 डिग्री जो कि 0.6 है, और आपका कॉस 37 डिग्री जो कि आपका 0.8 है। अब आपको उसको स्टार्ट कैसे करें, गेस करो। यानी कि मैं ये कह रही हूँ इसका क्या है, इधर आपका mg लगेगा, इधर आपका mg लगेगा, ठीक है, m1g और ये m2g, लेकिन ये दोनों टूटेंगे भी तो, ये दोनों टूटेंगे भी तो, ठीक है। तो जब ये दोनों टूट रहे हैं बेटा, जब ये दोनों टूट रहे हैं तो एक साइन कोफिशिएंट के साथ होगा, एक कॉस कोफिशिएंट के साथ होगा। तो जो साइन वाला कोफिशिएंट होगा वो आपके mg वाले के साथ होगा, और जो कॉस कोफिशिएंट होगा वो आपके किसके साथ होगा, फ्रिक्शन वाले के साथ होगा, यस मैम। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के रूप में स्टार्ट करते हैं। क्या, देखो हम बोलेंगे कि m1g साइन 37, क्योंकि हमें एंगल दे दिया गया है, प्लस m2g साइन 37, ठीक है, इजिकल टू आपका दोनों साइन के साथ होगा, यानी कि m1 प्लस m2g साइन 37 डिग्री, यही तो दोनों के बराबर हुआ, तो दोनों g साइन 37। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स दोनों पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो दो ब्लॉक के इंक्लाइन प्लेन्स पर है, इंक्लाइन प्लेन्स पर है, इंक्लाइन प्लेन पर है। तो इसके वजह से क्या हो गया कि जो म्यू 1 m1 g कॉस 37 डिग्री प्लस म्यू 2 m2 कॉस 37 डिग्री इजिकल टू क्या हो जाएगा, कॉस 37 डिग्री कॉमन हो जाएगा जी के साथ, तो म्यू 1 m1 प्लस म्यू 2 m2, और क्या आ जाएगा इधर g कॉस 37 डिग्री, क्लियर है। तो ये चीज़ तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें तो वैल्यूज दी हुई है, अपना कोई काम नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें किसके बराबर होंगे बेटा, ये सारी चीज़ें इसकी कॉमन एक्सेलरेशन के बराबर ही तो होगा। कॉमन एक्सेलरेशन यानी कि फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि फोर्स, तो ये सारी चीज़ें किसके बराबर होगी, जो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स के बराबर ही होंगी, क्लियर। तो देखो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्या कि ये जब हमारे पास कॉमन एक्सेलरेशन ए है तो हम ये करेंगे कि नेट, इसका मतलब देखो वी हैव लिख ही देती हूँ पूरा, वी हैव कॉमन एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन ए है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इसी के डायरेक्शन में ही नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है इसी के डायरेक्शन में, नीचे उसको गिराने के लिए, नीचे उसको गिराने के लिए। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स है वो आपका m1 प्लस m2 इंटू ए, जो कि आपका कॉमन एक्सेलरेशन है, इसी पर ही लग रहा है। तो सारे क्वांटिटीज़ को लेके हमें कॉमन क्वांटिटी नहीं निकाल सकते, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ बेटा कि m1 प्लस m2 इंटू ए, इधर आपका साइन वाला क्या था, m1 प्लस m2 इंटू जी साइन 37 डिग्री, और दूसरा वाला क्या था, अच्छा इसके डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन ऑपोजिंग फोर्स होता है। तो ये आपका म्यू 1 वाला इसके साथ म्यू 2 m2 जी कॉस 37 डिग्री, क्लियर है। तो भैया आप इसमें से निकाल सकते हो, एक ही वैल्यू निकाल सकते हो ना, एक ही वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये वैल्यूज हमें पता है, ये वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो ये सारी चीज़ें मिला के क्या हो जाएगा, आपका एक ही वैल्यू निकल जाएगी, वो आप कैलकुलेशन कर लोगे। नेक्स्ट हमारा काम है टेंशन निकालना, नेक्स्ट हमारा काम क्या है, टेंशन टी निकालना। ये दो ब्लॉक्स के बीच में काम कर रहा है। अब आप बताओ कि ये जो ब्लॉक है बेटा, ये जो ब्लॉक है कौन से एंगल, एक तो आपका देखो टेंशन, जो टेंशन ले रहा है वो साइन, जो टेंशन ले रहा है वो साइन थीटा के साथ नीचे की तरफ ही गिरा रहा है, लेकिन इसका ऑपोजिंग क्या कर रहा है, वो पीछे की तरफ ले जा रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें किसके बराबर हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आपके एम ए के बराबर हो रही हैं, एम ए के बराबर हो रही हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि ये जो आपका टेंशन के लिए है, टेंशन हम लोग किस पर लगा रहे हैं, आपके ब्लॉक 1 पर लगा रहे हैं, ब्लॉक 1 पर टेंशनल फोर्स के आंसर को हम निकालने के लगा रहे हैं। तो T1 सॉरी T1 कहाँ से आ गया,
m1g साइन 37 डिग्री माइनस म्यू1 m1g कॉस 37 डिग्री, और ये बराबर हो जाएगा आपके ma के। ठीक है, क्लियर है ना? तो आप इससे आंसर निकाल के बताना मुझे दोनों आंसर क्या है। अब मानो कि हमारे पास एक डायग्राम ऐसा है जिसमें कि एक वेज है, ठीक है, अरे एक वेज है, ठीक, और ये वेज जो है हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है एंगल 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है एंगल 30 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, और फिर इसके ऊपर एक ब्लॉक है। क्लियर? अब मुझे ये बताओ, ये ब्लॉक जो इसके ऊपर रखी, मान लो इस ब्लॉक का कोई भी मास है m इजिकल टू, मान लो कि मैंने 5 ग्राम बता दिया। क्लियर? 5 ग्राम बता दिया। सॉल्यूशन के बाद अब हमेशा 5 ग्राम को -3 से मल्टीप्लाई करके केजी में कन्वर्ट करोगे। अब अगर ये बोल दे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालो बॉडी का, ठीक है, लेकिन कुछ रिलेशन दिया हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन में है, ये ना असाइनमेंट दूंगी मैं, उस असाइनमेंट के क्वेश्चन में है, तो मैं 2 क्वेश्चन असाइनमेंट का करा दे रही हूँ। Obtain the coefficient of friction between the body and the plane if the time of ascent is half the time of descent। ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है और हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। अब मेरे को इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसको तोड़ते कैसे, तोड़ेंगे कैसे बेटा? तोड़ेंगे सबसे अच्छा, मैं दूसरे कलर से कर रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कैसे तोड़ना है। अब ये इस बॉडी है, इस साइड में क्या लगेगा? mg लगेगा, लेकिन mg तो लग रहा है, लेकिन मेरे पास 2 कोफिशिएंट्स लगाने हैं, एक कोफिशिएंट ऐसा लगेगा और एक कोफिशिएंट ऐसा लगेगा, राइट? लगेगा, तो ये वाला आपका जो एंगल के साथ बना रहा है वो क्या हो जाएगा? आपका कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये आपका mg कॉस थीटा हो गया। ये वाला क्या होगा? mg साइन थीटा वाला हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर ये बोल रहा है कि भैया इधर की तरफ हमारा एक्सेलरेशन a1 जा रहा है, मतलब इसको ऊपर की तरफ चढ़ा रहे हैं, और तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी? ये उसकी रिएक्शन r हो जाएगी ना? तो ये चारों हमें पता चल गए। क्लियर है? अब बोला कि अगर f जो है तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स है, सपोज करो कि लेट जो करो F इज योर फ्रिक्शनल फोर्स, तो डायग्राम के हिसाब से मेरा क्या होना चाहिए? F इजिकल टू म्यू आर, यही तो तब से हम लोग देखे जा रहे हैं, और ये होगा क्या? रिएक्शन के बराबर होगा, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि mg cos थीटा, थीटा की जगह पे बाद में हम लोग बैठा देंगे क्या? 30 डिग्री। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब a1 क्योंकि एक्सेलरेशन है जब असेंडिंग के समय, मान लो, ठीक है, जब a1 आपका एक्सेलरेशन है एट टाइम ऑफ असेंडिंग, असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? कौन सा वाला हम फोर्स लेंगे कंपोनेंट? ऑब्वियस ही बात है साइन थीटा वाला लेंगे, यही तो है इसके उधर। तो हम क्या लेंगे? mg साइन थीटा प्लस इधर वाले पे तो एक तरफ आपका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उसको खिसकने देंगे नहीं, और दूसरी तरफ आपका ma1 लग रहा है। ठीक है, मान लो कि जो डिसेंडिंग वाला एक्सेलरेशन है वो हमारा a2 है। सपोज डिसेंडिंग एक्सेलरेशन a2 है। क्लियर? तो अब हम क्या कर सकते हैं बताओ? डिसेंडिंग वाले फोर्स के लिए पहले ड्रॉ करेंगे हम। ये तो असेंडिंग के टाइम है, डिसेंडिंग की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी ना। ये क्या है? वो तो हमारा 30 डिग्री है, ब्लॉक हमारी ऐसे है, पहले हमने ए की डायरेक्शन जो इधर रखी थी, अब हम किधर रखेंगे? इधर रखेंगे a2, क्योंकि ये तो हमारा डिसेंडिंग है। लेकिन देखो ये जो ब्लॉक की mg ऐसे लग रही है, लेकिन अभी क्या होगा? अभी आपका इसको तोड़ेंगे तो वो सेम ही, तोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपका cos 30 mg cos 30, और ये वाली हो जाएगी mg sin 30। लेकिन एक बात बताओ, ये तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, खिसकाने के नीचे खिसक रहा है, ये हो जाएगा उसका रिएक्शन वाला, और इधर ही डायरेक्शन mg sin थीटा है और इधर ही डायरेक्शन आपकी m2 है, अरे mg sin थीटा है और इधर ही आपकी a2 है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू योर ma2, राइट? तो बस 3 इक्वेशन हमारे पास बन गई। ये तीसरा वाला मान लो, ये दूसरा वाला मान लो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? 1 2 को डिवाइड करो, तो 2 को 3 से डिवाइड करते हैं, क्या मिल जाएगा हमें? mg sin थीटा प्लस f डिवाइडेड बाई mg sin थीटा माइनस f, और ये बराबर हो जाएगा a1 और a2 के। क्यों निकाले हमने a1 और a2? क्योंकि बेटा हमें ये बता दिया गया है कि जो आपका टाइम ऑफ एसेंट है इज हाफ द टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो क्योंकि हाफ है इसलिए हमने इसको। अब हमारे पास इक्वेशन 1 है जो कि f बता रहा है mg cos थीटा, तो यहाँ पर जो f की वैल्यू है उस पर हम लोग ये सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। तो समझ गए क्या किया मैंने? f इजिकल टू म्यू आर, फिर हमने इस चीज़ को लिखा रेशियो के हिसाब से, फिर मैंने इसमें cos कॉमन लेके tan थीटा बनाया, tan थीटा, और मैं जानती हूँ कि भैया ये कंडीशन हमारे एक्सेंट का टाइम जो है वो हाफ है आपके डिसेंट के टाइम के, ठीक है, कोई भी प्लेन की लेंथ l के ऊपर,
ठीक है, तो हमने ये रेशियो निकाला, उससे रेशियो निकालने के बाद इसको निकाला, इसमें पुट रेशियो निकालने के बाद इसको पुट किया इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से और फिर ये निकाला। क्लियर है ना?